Assalamu alaikum, dear students. This lecture is for 7th class students, and my dear students, we are studying a chapter metals and not non-metals. In last video lecture, we already have finished the topic metals. My dear students, now I will try to revise that previous lecture. First of all, you know both elements, both metals and non-metals, they are elements. And my dear students, most of the elements are metals and some are non-metals. Majority are metals. Almost 93 among 118 elements, 193 are metals. Now what are metals? Metals are electropositive elements. So this means electropositive elements are those elements which have tendency to lose electrons. And my dear students, why they lose electrons? They lose electrons to attain stability or to attain nearest noble gas configuration. I already have told you about that lecture. We have finished that lecture. And my dear students, usually in metals, 1, 2, 3 valence electrons are present. Valence electrons are those electrons which are present in the outermost shell, or you can say which are present in the valence shell. My dear students, some examples of metals were sodium, potassium, calcium, beryllium. My dear students, majority of the lithium, they all are metals. And in their valence shell, usually 1, 2, 3 electrons are present, except hydrogen and helium, they are non-metals. Now today, my dear students, we will start another part that is called non-metals. Now what are non-metals? They are also elements, but what sort of elements? They are those elements which have those elements which have tendency to gain electrons. शाबाश म्यून गुबर. नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की. वेरी गुड. मेटल्स को क्या होता है? दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. दोज एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव. This means non-metals are electronegative elements. ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं. जिगर में समझ आ रहा है क्या मैंने कहा? They are electronegative. This means what are metals को एक और नाम से बुलाते हैं electropositive. Non-metals को electronegative. Some examples of non-metals are fluorine, chlorine, oxygen, nitrogen. They all are non-metals. बहुत सारे non-metals भी हैं. ये कुछ non-metals मैंने यहाँ पे लिखे हैं. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चाहे सल्फर की बात करेंगे, ये सारे नॉन मेटल्स. तो म्यून गोबर ये आप याद रखिएगा, यूजुअली इन नॉन मेटल्स 4, 5, 6, 7, 8 valence electrons are present. क्या म्यून गोबर मैंने यहाँ पे लिखा एक और पॉइंट. नॉन मेटल्स में या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 7 या तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. ये आगे क्लियर होगा. सर जी यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो लास्ट शेल में प्रेजेंट होंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लोरीन की बात करूंगा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, 2 and 7 है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत है स्टेबिलिटी के लिए?
8 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा ना टू फॉलो द ऑक्टेट रूल फॉर स्टेबिलिटी, ये गेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन। क्या करता है इलेक्ट्रॉन? एक गेन। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है ये बनेगा F नेगेटिव। क्या बनेगा? F नेगेटिव। अभी हम इस पे बात करेंगे। तो इसने एक गेन किया तो 1 नेगेटिव, 2 गेन करता तो 2 नेगेटिव, 3 गेन करता तो 3। हाँ, इतना समझ आया? तो ये है नॉन मेटल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज फर्स्ट शेल एंड दिस इज सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में 2, दूसरे शेल में 7। फर्स्ट शेल contains 2, second shell, it is valence electrons, they are valence electrons, they are present in valence shell. Are you getting this? So if metal or non-metal has to lose or gain electrons, they have to lose these electrons or gain these electrons in the outermost shell. Last shell से gain भी इसी को करने हैं और loss भी इसी को करने हैं। समझ आया? आशाबाश। लेकिन सर आपने लिखा लास्ट शेल है, लास्ट शेल में 7 है तो ये नॉन मेटल है। जल्दी जल्दी हम पहचानेंगे, इसमें मेटलॉइड्स भी आएंगे। ये थोड़ा सा आपको मतलब बच्चों के लिए ये वाला ट्रिक है, और अदरवाइज इट इज़ नॉट फॉलोड। इसमें लिमिटेशंस है बहुत सारी। सर आपने कहा 8 जो है वो भी नॉन मेटल है। सर फॉर एग्जांपल नियान की बात करेंगे, नियान का एटॉमिक नंबर 10 है, 2 and 8। सर ये तो 8 है, ये तो ना गेन करेगा लॉस करेगा, तब भी ये नॉन मेटल है बिकॉज ऑन द बेस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम इसको नहीं बोलते बिकॉज ये तो इलेक्ट्रॉन है, ये जो है ही नहीं, ये एक्सेप्ट ही नहीं करता है इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल है। लेकिन हम इसको फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे या बाकी प्रॉपर्टीज के बेस पे इसको नॉन मेटल कैटेगरी में रखते हैं। इसलिए 8 भी, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो जाए तो आप 7 तक लिखिए, जिनमें 7, 6, 4, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। इसमें कार्बन का भी आता है, टेट्रावैलेंट है वो, लेकिन वहाँ से वो सेमीकंडक्टर, उसको सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज भी है, ये सॉरी इसको मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी भी है। इतना समझ आया? अब मैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगा इन नॉन मेटल्स की। फ्लोरीन का तो समझ आया, अब मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या ऑक्सीजन का? 8। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसको कितनी ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन ज़रूरत है। तो जब ये 2 एक्सेप्ट करेगा तो 8 बन जाएंगे। तो इस पे चार्ज क्या चढ़ेगा? O डबल नेगेटिव। O डबल नेगेटिव। समझ आया? ये बना F नेगेटिव। और जिगर में जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज नेगेटिव ही चढ़ेगा ना। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। वहाँ पे वो लॉस करता था तो इलेक्ट्रॉन्स कम होते थे तो पॉजिटिव चार्ज चढ़ता था। समझ आया? इसी तरह नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है 7, 2 and 5। 5 है तो सीधे नॉन मेटल है। जरूरत कितने हैं? 3 इसको जरूरत। देखो सर ये मेटल क्यों नहीं है? बिकॉज ये 5 लॉस नहीं कर सकता, इसको सिर्फ 3 चाहिए। तो N ट्रिपल नेगेटिव का चार्ज इस पे चढ़ेगा। समझ आए? फ्लोरीन पे क्या चार्ज? F नेगेटिव। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज? O डबल नेगेटिव। नाइट्रोजन पे क्या? N ट्रिपल नेगेटिव। और जिगर में ये आयन्स है ना तीनों, लेकिन कौन से आयन्स? दे आर एनायंस। दे आर एनायंस। व्हाट आर एनायंस? Anions are negatively charged ions. तो non metals after accepting electrons, accept करते हैं electrons, they get converted into anions. They get converted into anions. ये anions में convert हो जाते हैं। और म्यून गोबर metals usually क्या होते हैं? cations. non metals क्या होते हैं? anions. क्यों? जब लॉस और गेन करने के बाद ऐसे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन इस टाइम 7 है तो ये एनायन कैटायन नहीं है, लेकिन जब ये गेन करेगा तब ये एनायन बनाएगा। जिस तरह सोडियम लॉस करेगा ना इलेक्ट्रॉन, तब ये कैटायन बनाएगा Na पॉजिटिव का। समझ है वन में वन गोबर? तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। What are cations? What are anions? But one thing you have to keep in mind, my dear students, both metals and non-metals, they are very important because यही हमारा periodic table बनाते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करते हो, कोई भी कंपाउंड देखते हो, यही एलिमेंट्स मेटल नॉन मेटल्स, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक है। मेटल कैसे रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के साथ, मतलब फिर नया कंपाउंड बनाता, तो इसमें कम्बिनेशन इन्हीं मेटल्स और नॉन मेटल्स की ही होती है। समझ है वन गोबर में? तो नॉन मेटल्स भी अच्छे से आपको समझ आए कि दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे हैव ए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स
and my dear student, fluorine, chlorine, oxygen, nitrogen, sulfur, they are non-metals, and usually in non-metals 4, 5, 6, 7, 8 valence electrons. Why 8? Because they will not gain electron, but still they are non-metals because of their physical properties. And when non-metals accept electrons, they get converted into anions. When metals lose electrons, they get converted into cations. What are anions? Anions are negatively charged ions. Negatively charged ions. नेगेटिवली चार्जड आयन्स। जिगर में ये सब समझ आया आपको? सबको समझ आया? हाँ, जरा अगर कोई मुझे बोलेगा मैंने परसों बोला था Na में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 11 है। Na पॉजिटिव में कितने हैं, इसने 1 लॉस किया तो अब 10 ही है। जरा फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? फ्लोरीन में 9 है। F नेगेटिव में कितने हैं? इसने 1 गेन किया, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ये दिमाग में रखिएगा। इस तरह ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में है 8, बिकॉज एटॉमिक नंबर है 8। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन्स 8 है इसमें, लेकिन इसने 2 एक्सेप्ट किए O डबल नेगेटिव में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में 8 ही है। समझ आई वन में उनको? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।